Greetings, my affectionate children. In this video, we are going to learn how to write letter writing, especially about inquiry letter and inquiry also about the tour and course. Means how to write inquiry letter if you want to go to tour, and how to write inquiry letter if you are going to adopt any of the course there. And after that, I will tell you in the same video how to give reply of inquiry letter, reply of inquiry letter of the tour, reply of inquiry letter of the course. So let's start the video there. In this one, what is given? There are five types of letters. All are five types of letter according to 11th 12th class, but according to other classes it can be of four types there. Okay, so how many types of five there? First is like a letter to editor, complaint letter, job application and resume letter for inquiry, and letter for place and order. So these are the five types of letters, and I have made video on each type of letters. Now this is the time to make the video about inquiry letter. Okay, so you will get every kind of material in each kind of letter writing. Okay, so now this time we are going to start to teach there how will be the marking scheme in the board classes there. So in 10th class, if we will talk about the 10th class, then it will be of 8 marks question in board class, and 1 mark will there will be of sender address, date, receiver address, subject, heading, salutation, and complimentary. Okay, 4 marks will be for content, means whatever the question is asked to you, you have to written related content there. For that you will get 4 marks. And accuracy means how much data or content is correct. Spellings also there, that will be in 1.5 mark. And after that, fluency means your language, your writing skill will be checked in 1.5 mark, right? And this video is very helpful for rest of the classes also, because in rest of the classes like 5th, 6th, 7th, 8th class, there will be letter of inquiry letter, but that time marks will reduce there, like it will be of 5 marks or 6 marks like this there. Okay, according to 6 marks, how will be the marking scheme in board classes there? Like in 12th class and 11th class, it will come in 6 marks, and 1 mark for heading, 2 marks for content, 1 mark for accuracy, and 1 mark for fluency. So like this will be the checking in the board classes there, and rest of the classes also the marking will remain same. Now come to the format. Everybody knows the same format of the letter will remain there. Like first of all, you have to write a sender address on the left hand side, then 1 line gap, then date, then 1 line gap, then receiver address. After that again 1 line gap. You have to write a subject in a letter. Subject of the letter means in 4 to 5 words. Don't write the subject in 2 or 3 lines. This is the major mistake of the student. So subject should always be in 4 or 5 lines there. After that, you have to write a salutation. What do you mean by salutation? Salutation means you are going to write greetings for some person whom you are going to write letter, like sir or ma'am you are going to write, and no comma will be used after any of this one. Like after sender address, no comma. After date, no comma. Receiver address, no comma. So no one will use their commas there. Like after sir and ma'am, no one will use comma. And don't use their respected now. Respected sir, respected ma'am. Simply you have to write just only sir or ma'am there. After that, body of the letter will be there. In body of the letter, it will be divided in 3 parts, like first paragraph, second paragraph, third paragraph. In first paragraph of the letter, you have to introduce the purpose of writing the letter, then take 1 line gap. After that, the second para, you have to conclude whatever the matter or the detail of the letter, whatever you want to write. Third para, after that 1 line gap, then third para, you have to conclude whatever letter you have written there, and you will mention then conclusion or solution. You will hope for the solution, otherwise you will give solution there about the letter, about the topic whatever you have taken. After that, complimentary closing like 1 line gap, then thank you. After that, yours faithfully, yours sincerely, yours truly. Any one out of these 3 you have to write. And yes, don't do the mistake of writing your apostrophe s. That is wrong word. That word is not used anywhere. That is our major mistake, that we are using your and apostrophe s. That is no any word. You can search on net also to verify this one. Okay, so yours again there, yours sincerely means your apostrophe s will not come. That is no any word, so that is our mistake. Don't use that one. So you can use either
faithfully, sincerely, or truly. And in the spelling of truly, mostly students do the mistake in e. They always use a truely. That is wrong spelling. Correct spelling is truly. Okay, after that you have to write your name or signature or the designation, whatever is given to you. Now come to the question. With the help of question it will clear to you too much. Like the question is given, you are secretary student council of ABC school. School name is given ABC school, Delhi. You are organizing an excursion or tour. Means you have organized excursion or tour. If in the letter excursion word will work, that it means also tour. अगर आपके लेटर में only excursion word आता है, it means होता है टूर की, टूर के लिए आप कहीं पे जा रहे हो. टू मनाली, मनाली के लिए आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो. राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर. अब आपको डायरेक्टर को लेटर लिखना है यहाँ पर, टू द डायरेक्टर. अदरवाइज दे कैन आस्क यू राइट अ लेटर टू द मैनेजर, देन यू हैव टू राइट द मैनेजर, and the manager is there in the tourism department, Manali. Okay, this is the address of the person whom you are going to write the letter. Asking to supply the information on the terms and condition of conducting excursion. क्योंकि ये जो डायरेक्टर है, ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसी ने जो है वो टूर कंडक्ट किया है, और ये टूर कंडक्ट किया है, तभी आप उनसे इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, तभी आप इंक्वायरी मांग रहे हो यहाँ पर टूर की, कि टूर की इंक्वायरी के लिए आपको दे कि क्या टूर है यहाँ पर, कितने दिन का है, वो सारी इंक्वायरी अपने यहाँ पर करनी है. सो हु आर यू? यू आर from ABC School Delhi. You have to just write only these two words there. ABC School Delhi से आप हो, ठीक है. Otherwise you can write secretary or student council of ABC School. So you can write there secretary. After that comma ABC School Delhi. You can write this one also, no issue. Means your own address will come there. Then one line gap. After that date you have to write in such format. 12 June 2020. No comma will come there. But if you are writing date in the manner like June 12, then comma 2020, it will be right there. Okay, June 12 comma 2020, then it will also be good and accurate way of writing the date. But after this address no comma will come. After this 20 no comma will come. Right now where is the director? You know, here is the director, so we are writing the director. Otherwise the manager, then the manager we have to write there. So the director or the manager, whatever is given in the question, we have to write the same. Okay, after that where is this director? This director is in the tourism department, so write this place name, where is this, and now this is the state name or whatever is the place. Okay, Manali. After that one line gap, and see no comma will be used there. Please pay attention this side. Subject, inquiry about. Start your subject with inquiry about. Inquiry about like tour to Manali, inquiry about tour to Goa, inquiry about excursion to any of the place you will write there, whatever you are going to visit. Now after that one line gap, then sir. One line gap, see here, no comma will come, no respected word will come. Respected word we always use for those who are known to us, like respected principal sir. In that case we always use respected, but in such kind of letter we are using just only sir or ma'am, nothing else. Okay, after that you are taking one line gap, then this is with reference to your advertisement. हाँ जी, अब आप इंक्वायरी लेने जा रहे हो, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको ये पता कहाँ से चला कि ये टूर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ से पता चला. दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू ऐड इन योर लेटर, कि कैसे पता चला कि उन्होंने जो है वो टूर निकाल रखा है, टूर के लिए ऑफर कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट. सो दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट. आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी, और एडवर्टाइजमेंट में मोस्ट स्टूडेंट एस के बाद ई नहीं लगाते. प्लीज add e also there in advertisement. Okay, so yours advertisement in the Hindustan Times, you have to write the newspaper name there. If the newspaper name is given in the question, then you have to write the same newspaper name. Otherwise you can write the newspaper name of your own choice. Okay, dated, which date? Yes, on which date you have seen the advertisement? This date should be 2 or 3 days prior than the date on which you are going to write letter. जब आप लेटर लिखने जा रहे हो, लाइक डेट आपने 12 जून यहाँ पर लिखी थी, ऊपर जब डेट यहाँ पर ऐसे ऊपर डाली थी, अब 12 जून को लेटर लिख रहे हो, तो उससे पहले तो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, तो उससे पहले की डेट 1 or 2 days पहले की आपको यहाँ पर लिखनी है. यू हैव टू राइट 1 or 2 days prior date, then whatever you are going to write letter, जो आप लिखने जा रहे हो उस डेट से आपको 1 or 2 days की पहले की डेट यहाँ पे डालनी है. एग्जैक्ट. सो न्यूज़पेपर नेम,
after that dated, and then you have to write this one. And yes, the Hindustan Times will be in the quotation. आपको quotation में डालना है, commas, inverted comma जो आपकी ये होती है उसके अंदर आपको डालना है इसको. After that, about conducting course, कोर्स को जो वो कंडक्ट कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट हमने देखी थी वो हिंदुस्तान टाइम्स में देखी थी. इन दिस कनेक्शन, इसी कनेक्शन में आई मेक इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ यू, आपको, that the students council of the school wishes to escort a group of 50 students to visit Manali. भी हमारे जो स्कूल के 50 स्टूडेंट्स हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद वो विलिंग है, वो डिजायरस हैं इस टूर पे जाने के लिए. फ्रॉम 15 जुलाई टू 25 जुलाई, मीन्स उसने डेट भी डाल दी अब हमने कि हम इस डेट के बीच में हम इतने स्टूडेंट यहाँ से जा सकते हैं. देयरफॉर आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल, और इसके लिए मुझे ये डिटेल मुझे जाननी बहुत जरूरी है एक्सकर्शन की, कि आप क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हो यहाँ पर. ठीक है, लाइक first you, this is your inquiry. Now you have to write inquiry whatever you want to ask from the manager or from the director of the tour or tourism department. So what is your first, your first inquiry is that tourist spot to be included in the tour. भी टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से होंगे, वो कौन सी टूरिस्ट जगह होंगी, स्पॉट्स मीन्स वो कौन सी जगह होंगी जो कि टूर के लिए इंक्लूड है. अवेलेबिलिटी ऑफ द एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स होता है रहने की अवेलेबिलिटी है वहां पर कि कहीं पर हम वहां पर रुक सकते हैं, वो वाली आपने पूछनी है. बोर्डिंग और लोडिंग चार्जेस, बोर्डिंग और लोडिंग क्या होता है कि जिससे जो लगेज आप लेके जाते हो, जो मटेरियल लेके जाते हो, उसको जो आपकी ट्रैवलिंग की जो मतलब टूरिस्ट बस होती है तो उसमें उसको चढ़ाने का और उसमें से उसको उतारने का. बोर्डिंग और लोडिंग मतलब उसको लोड करना, मतलब उसको उतारना और चढ़ाने की जो चार्जेस है वो भी इंक्लूड करें कि उनके कितने चार्ज यहाँ पर लगेंगे. देन स्टूडेंट्स कंसेशन अगर कोई है तो वो बताएं. डिटेल्स अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट, अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट है तो उसके डिटेल देखिए कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट यहाँ पर आप दिखाने वाले हो हमें. मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा आपके इस एक्सकर्शन का, इस टूर का, और अदर फैसिलिटीज जो भी वो यहाँ पर आप उनसे पूछ रहे हो. इट्स माई मीक रिक्वेस्ट, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मीक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, टू सेंड द अबव आस्किंग डिटेल विद इन 7 डेज. 7 डेज के अंदर प्लीज भेज दें. द इशू ऑफ दिस लेटर, जब मैं इस लेटर को इशू कर रहा हूँ, मीन्स मैंने अगर 12 जून को लिखा है तो उसके 7 डेज के अंदर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भेज दे. आई एम सेंडिंग अ सेल्फ एड्रेस एनवॉल्व, और मैंने अपना ना खुद का लिखा हुआ एक एनवॉल्व भी यहाँ पर, एक एनवॉल्व भी यहाँ पर डाल दिया है लेटर के साथ. सेंड मी द इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, और मुझे जो वो अर्लीस्ट मतलब मुझे सबसे पहले जो वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, सो दैट वी कैन रजिस्टर आवर सेल्व्स इन टाइम, ताकि हम अपने आप को रजिस्टर कर सके इन टाइम. इन टाइम मीन्स विद इन द टाइम. ठीक है, विद इन द टाइम. योर्स सिंसियरली, अब यहाँ पर आप थैंक्स ऐड करना चाहो थैंक्स करो, यहाँ पर 1 लाइन गैप लेके थैंक्स ऐड कर दो. योर्स सिंसियरली, अब कौन थे आप, सेक्रेटरी और स्टूडेंट काउंसिल एबीसी स्कूल. यू हैव टू राइट योर ऑन फुल एड्रेस. सी, नो एपोस्ट्रोफी विल कम, नो कॉमास विल कम एट द एंड. बीच में आप कॉमास यूज कर सकते हो, नो इशू, क्योंकि बीच में आपको प्लेस को और स्कूल को डिफरेंशिएट करना है, बट एट द एंड नो कॉमा विल यूज. मैंने एंडिंग में कॉमा यूज ना करने के लिए मना किया था. नाउ द इंक्वायरी लेटर अबाउट कोर्स, अब अगर आप कोर्स करना चाहते हो तब क्या करोगे, यहाँ पर कोर्स के लिए आपको दिया, आपका एड्रेस गिवन है, फिर शॉर्ट टर्म कोर्स गिवन है यहाँ पर, और एड्रेस दिया कि जहां पर आपने लिखना है, जैसे आपका अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 लाइन गैप डेट डाल दी, फिर आप जहां पर कोर्स करना चाहते हो उनका एड्रेस डाल दिया. देन इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स, अब यहाँ पर इंक्वायरी अबाउट किसकी इंक्वायरी है, शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स की है या फिर इंग्लिश स्पोकन कोर्स की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के, वो यू हैव टू राइट देयर, एड ऑन देयर. देन अगेन सर, आफ्टर दैट 1 लाइन गैप, आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट. अगेन आपने वही लिखना कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी कहाँ पे है, कौन से न्यूज़पेपर में, किस डेट को देखी है. ठीक है, इट्स अपीयर बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग. आई हैव पास्ड माई सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, भी 85% से मैंने सीनियर सेकेंडरी जो पास किया, क्योंकि मैं कोर्स करना चाहता हूँ तो मुझे अपने मार्क्स बताने होंगे. आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स, मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ. बट बिफोर ज्वाइनिंग आई हैव सम क्वेरीज एंड द क्वेरीज आर देयर. ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितना रहेगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का, कितना रहेगा. टाइमिंग एंड फीस स्ट्रक्चर, भी कितनी टाइमिंग होगी, कितने टाइम के लिए कोर्स पे आना पड़ेगा और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा. मोड
मोड ऑफ पेमेंट इसका क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको इस कोर्स के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एक बैच में, फैसिलिटी है अगर इवनिंग की या पार्ट टाइम बैचेस की तो वो भी प्लीज बताएं। वेदर रिकॉग्नाइज, अब जो भी आप सर्टिफिकेट देने वाले हो वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है यूनिवर्सिटी से, वो भी हमें बताओ। आफ्टर दैट फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की है या नहीं है, या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कोर्स भी हमें सारी सब कुछ बताए कि फ्यूचर में आप यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज को लॉन्च करने जा रहे हो। ठीक है, इट्स माय मीक रिक्वेस्ट, में ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि मुझे एक कॉपी प्लीज प्रोस्पेक्टस की भेज दीजिए विद इन 7 days ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर। 7 days के अंदर अंदर भेज दे जब से मैंने ये लेटर लिखा है। आई एम सेंडिंग सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, मैं जो एड्रेस का एनवलप वो यहाँ पर भेज रहा हूँ विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ सेंड मी द इंफॉर्मेशन अर्लीस्ट सो दैट आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ इन टाइम, मतलब विद इन द टाइम के अंदर अंदर मैं अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकूं। योर सिंसियरली रजनी एंड राहुल। सो आई टॉट यू देयर रिप्लाई इंक्वायरी लेटर अबाउट कोर्स एंड अबाउट टूर। नाउ हाउ विल यू गिव रिप्लाई, अब रिप्लाई कौन देगा यहाँ पर, रिप्लाई ऑलवेज कौन देता है, जहां पर हमने लेटर लिखा वही तो रिप्लाई देगा। ठीक है, अब हमने लेटर किसको लिखा था, मैनेजर को लिखा था, तो वो मैनेजर ही हमें क्या करेगा, रिप्लाई देगा। ठीक है, अब जब मैनेजर हमें रिप्लाई देगा तो क्या होगा, सबसे पहले एड्रेस, अब सेंडर कौन है यहाँ पे, कौन है सेंडर यहाँ पर सेंडर होगा वो मैनेजर, तो मैनेजर का एड्रेस सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर का एड्रेस आ गया ऊपर, बाद में डेट, 1 लाइन गैप, आफ्टर दैट योर एड्रेस, क्योंकि अब मैनेजर जो है वो रिप्लाई देगा आपकी इंक्वायरी का, तो आपको लेटर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रेट चेंज है, यहाँ पर दिस इज द मेजर चेंज, हियर यू हैव टू राइट द पर्सन हु आर सेंडिंग द लेटर। तो अब यहाँ पर ये रिप्लाई कौन सेंड कर रहा है, मैनेजर सेंड कर रहा है, कौन सा मैनेजर कहाँ का, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब किसको रिप्लाई दे रहा है, जिसने पहले लेटर इंक्वायरी लिखा था उसको लिख रहा है, तो ये एड्रेस आप यहाँ पर ध्यान रखना। आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी अबाउट, अब आपने यहाँ पर रिप्लाई वर्ड बिल्कुल ऐड करना है, याद से रिप्लाई लिख रहे हो आप यहाँ पर इंक्वायरी लेटर का, और किसकी रिप्लाई है, शॉर्ट टर्म कोर्स की। ठीक है, उसके बाद वो आपने यहाँ पर डियर वर्ड ऐड करना है, ध्यान रखना, 1 लाइन गैप लेके डियर राहुल और जो भी आपका नेम आपने यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि अब आप यहाँ एज अ मैनेजर उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं आपके कोर्स की, वो सारे आप इंट्रोड्यूस करोगे। वी आर ग्रेटफुल, हम थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, ग्रेटिट्यूड है फॉर योर इंक्वायरी, की आपने इंक्वायरी पूछी किसके बारे में, कंप्यूटर कोर्स के बारे में। आई हैव एनक्लोज्ड, मैंने भेज दी है यहाँ पर क्या, प्रोस्पेक्टस भेज दिया है रिप्लाई लेटर के साथ, एंड वी हैव अ सीरीज ऑफ कोर्स। अब हमारे पास एक ही कोर्स नहीं है, आपने अपनी और भी ऐड करने की, हमारे पास सिर्फ सिंगल कोर्स नहीं है, हमारे पास सीरीज ऑफ कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं, जिसमें से आपने सिर्फ इस एक को सिलेक्ट किया है, एंड यू विल फाइंड आवर कोऑपरेशन, हमारा कोऑपरेशन आपका हर स्टेप पे रहेगा। वी ऑफर 50% डिस्काउंट, हम 50% डिस्काउंट भी देते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स, जो हमारे ऑलरेडी पहले से कैंडिडेट हैं, हम उनको 50% डिस्काउंट देते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू एक्सटेंड दिस ऑफर, और यही ऑफर हम आपको भी देना चाहेंगे इफ यू रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर करते हो अपने आप को 30 जून से पहले। एंड एडिशनली एज अ न्यू कैंडिडेट, अगर जैसे न्यू कैंडिडेट होता है तो हम एडिशनल 5% डिस्काउंट भी उसको देते हैं। ठीक है, अगर आप कोई ये कोर्स सिलेक्ट करते हो तो। आई होप यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन, मैं होप करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगेगी और जो मैंने प्रोवाइड किया वो सारी आपको हेल्पफुल रहेगी। आई वुड बी ग्रेटिट्यूड, अब मैं बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, धन्यवाद हूँ, मैं थैंकफुल हूँ टू हैव वन अकाउंट और टू हैव वन ऑफ आवर अकाउंट मैनेजर। अब मैं अपने अकाउंट मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको फर्दर अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, और यू मे कॉल मी डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहो तो ऐसे कॉल कर सकते हो दिस नंबर पे। थैंक यू फॉर अडॉप्टिंग आवर कोर्स। आपको उसके बाद 1 लाइन गैप लेना है, देन योर सिंसियरली, देन यू हैव टू राइट योर ऑन, बिकॉज आप मैनेजर थे तो आप द मैनेजर जी कंप्यूटर वर्ल्ड, आपने अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। सो इट वाज ऑल अबाउट रिप्लाई लेटर। Okay, I taught you in this video how to write inquiry letter for course, how to write inquiry letter for tour. After that, I have written there how to give reply letter of course or tour there. Same you will write. I hope everybody would understand this one. And if you want to watch other letters video, you can go to the channel playlist of writing section. Then you can watch the other videos of other letters also. Thank you so much for watching the video. Have a nice day, everyone.